Okay, good afternoon, children. Good afternoon, everyone. Uh, we had last topic of what we were studying was resources. Okay, so we were studying about the types of resources, how they are beneficial to us, how they used to work for us, and how we used to you can say innovate it to use it for ourselves. Okay. Okay, good afternoon everyone. So before starting or before proceeding our class, we will be revising everything whatever we have been studied till now. Okay, जो भी अभी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उन सारी चीजों को आज पहले हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि आज हम 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज एवरीथिंग जो भी हम लोग पढ़ चुके थे उसे रिवाइज करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है. ओके, राजनंदिनी, श्रेया and everyone, Poonam, Amrish. Okay, good afternoon everyone. Okay, good afternoon. So yes, the first question is, what are resources? The first question is, what are resources? ये इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि resources क्या होती है, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है. उसके लिए हम लोगों ने पढ़ाई मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था ना. तो आप हम लोग बताएंगे आज आंसर करेंगे कि व्हाट आर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स? चलिए जल्दी से बताइए. हु विल आंसर? कौन आंसर करेगा? आंसर करिए जल्दी से. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स? चलिए पहले आंसर कर दें. क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, इन आवर लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड कि रिसोर्सेज क्या होती हैं, कैसे होती हैं. ओके, आज फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. किसी को कुछ भी नहीं याद है? थोड़ा सा भी नहीं याद है कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यूटिलिटी. रिसोर्सेज आर द यूटिलिटीज एंड यूजेबिलिटीज. हाँ, कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो होती है वो यूटिलिटी पर बेस्ड होती है, हमारी यूजेबिलिटी पर बेस्ड होती है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. Anything that is used to satisfy human wants. ठीक है. कोई भी ऐसी चीज जो human wants को satisfy करे. ठीक है. कोई भी ऐसी चीज जो human wants को, that is the collection of wealth. Yes, it can be said. Yes, you are correct. Princy Verma, Poonam. Yes, your answers are correct. But what we had discussed was anything that is used to satisfy human wants. हर वो चीज जो human wants को satisfy करने के लिए इस्तेमाल की जाए, उन सारी चीजों को हम लोग resources कह सकते हैं. ठीक है. Be it be our clothes, be it be our food, be it be our housing, everything जो भी हम लोग use कर सकते हैं अपने benefit के लिए, अपने wants को satisfy करने के लिए, whether it is air, whether it is sunlight, roads, natural things, natural beauty, you can say trees, plants, food, whatever, water, everything जो भी हमारे आसपास है, जिन चीजों को हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, that all is said to be resource for human wants. Okay, actually the font of your replies is very small. Okay, yes, correct. Who is this? This is Poonam Tiwari. Fine. Okay. So yes, our first answer is done. Now what was our second question? The second question is,
resources? What are the basis of resources? Resources के basis क्या होते हैं? कौन बताएगा? What are the basis of resources? If we are discussing this question, जो last class में हम लोगों ने discuss किया था, yes, जो हम लोगों ने last class में discuss किया था, that was based on its origin. ठीक है, वो इसके origin पे based था. ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो what are the basis of resources on behalf of its origin? अपने origin के अकॉर्डिंग जब हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो ओरिजिनेट्स जहां से होती है, उसको हम लोग किस किस फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो अभी आंसर आया है पूनम तिवारी का. ओनली दैट मींस ओनली द गर्ल पूनम तिवारी इज द स्टूडेंट हु हैड स्टडीड. सिर्फ पूनम तिवारी ने पढ़ाई की थी, बाकी सब ने नहीं पढ़ा, किसी ने रिवाइज नहीं किया. व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? कमला देवी, okay. And what? Prince Verma. See, children, mention your name, okay? Whenever you are answering your answers, whenever you are commenting your answers, just mention your name also. आप अपना नाम भी mention कर दे last में, fine? अच्छा, yes. So, what are the basis of resources? अगर हम लोग इसके मतलब basis of resources की बात करें on the basis of its origin के basis पे resources कितने तरीके की होती हैं? तो they are of two type. The first one is abiotic and the other is biotic. Okay, fine. पहला हमारा abiotic होता है, दूसरा हमारा biotic होता है. Alright. अच्छा, this Poonam Tiwari is Shreya. Okay, and then Tushar is Mansi. Okay. Okay, so if you are discussing on biotic components जो होते हैं हमारे environment में, हमारी जो biotic resources होती हैं वो क्या होती हैं? An example, आप इसमें कोई example दे सकते हैं कि अगर हम biotic की बात करें तो biotic में कौन-कौन से examples आ सकते हैं? What can be the examples or what are the examples in biotic components? Biotic components की कोई example दे सकता है? हम लोगों ने इसके बारे में भी discuss कर लिया था, जल्दी जल्दी बताइए. Shreya, Mansi, answer the question. Avnish, human beings, correct, correct. जब हम लोग बायोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं ह्यूमंस, ठीक है. और एक और भी एग्जांपल होता है, one more is there, humans and plants. फाइन. जब हम लोग बायोटिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे आते हैं ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स. फाइन. अच्छा, ये क्या लिखा है? Plants, fungi. Okay, when we are talking about abiotic components or we are talking about abiotic components, तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें हमारे आ जाते हैं mountains, soil, sunlight, or you can say sun, rocks, etc. Okay, there are so many. जो भी non-living creatures हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, सॉइल हो गए, सनलाइट हो गए, रॉक्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें जो भी हमारे लिए यू कैन से द थिंग्स व्हिच आर नॉट लिविंग, उन सब चीजों को हम लोग कहते हैं यस यस टेम्परेचर एंड एवरीथिंग मींस द थिंग्स व्हिच इज नॉट alive, मींस द थिंग्स व्हिच इज नॉट लाइव, उन सब चीजों को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में कहते हैं. एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर लिविंग और यू कैन से यस ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स आर सेड टू बी are counted in biotic components. All right. Water minerals, yes, they are abiotic. Okay. चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. Okay. Now, how does a substance becomes a resource? How does a substance becomes a resource? एक substance जो है वो resource कैसे बन जाता है? चलिए बताइए जल्दी से. How does a substance becomes a
रिसोर्स, एक सब्सटेंस जो होता है वो हमारा रिसोर्स कैसे हो जाता है? चलिए बताइए, हाउ डज अ सब्सटेंस बिकम अ रिसोर्स? देखिए हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था, यस जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो हम लोगों ने एक एग्जांपल लेकर पढ़ा था, एक नहीं बल्कि कई एग्जांपल्स लेकर पढ़े थे। द फर्स्ट वन वाज फायर, जब हम लोगों की फायर की डिस्कवरी हुई थी, या जब हमारा फायर जो डिस्कवर हुआ था, इन्वेंशन हुआ था व्हील का, इन सारी चीजों का जब डिस्कवरी और इन्वेंशंस हुए थे, तो उस टाइम पर दे वर नॉट एक्टिंग एज अ रिसोर्स, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, इट वाज जस्ट सब्सटेंस फॉर अस, हमारे लिए क्या था? सिर्फ सब्सटेंस था। बट in corporation with yes, in corporation with time and in corporation with time and technology a substance becomes a resource। ठीक है, जब हम लोग टाइम और टेक्नोलॉजी का यू कैन से इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्सटेंस में, तो वो क्या बन जाता है? हमारा रिसोर्स बन जाता है। ऑलराइट, ओके, यस राजनंदिनी। यस, देखिए जब फायर की डिस्कवरी हुई थी तो वी वर जस्ट यूटिलाइजिंग फायर एज अ सब्सटेंस, उसको हम लोग सिर्फ खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे और रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। बट नाउअडेज हम लोगों ने फायर से जो डिस्कवरी है, मतलब फायर की डिस्कवरी के साथ साथ हम लोगों ने इसको इतना ज्यादा इनोवेट किया दैट टुडे वी आर यूजिंग इट इन द न्यूमरस फॉर्म्स। आज हम उसको न्यूमरस फॉर्म्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस मशीन्स, आजकल बहुत सारे मशीन्स में इस्तेमाल होती है। वी आर यूजिंग इट एज अ लाइट, ओके, we are using it for cooking food, but and now it means in today's life we are just not utilizing it for cooking food। cooking food करने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। we are using sunlight also in different forms। ठीक है, अभी जब हम लोगों की wheels का invention हुआ था तो we were using wheels just for transporting or transferring one you can say huge material from one place to another। but nowadays all the transport which is going on is on the basis of those wheels। उस wheels, उन wheels को हम लोगों ने बहुत तरीके से transform किया। nowadays we are using fans, we are using you can say coolers, we are using spinning wheels, ओके, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने व्हील्स को बहुत तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, छोटे बड़े साइजेस में थोड़ा सा इनोवेशन किया, एंड नाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स व्हिच इज वर्किंग ऑन द मींस दिस बेसिक व्हील्स। अंडरस्टूड? आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, कुकिंग, बर्निंग, यस करेक्ट। अच्छा, अभी इतना सारा कुछ तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और किसी को इन सारी चीजों में कोई डाउट है, कुछ छूट गया जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ? अच्छा, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक और टॉपिक, हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था, किसी को याद है क्या पढ़ा था? दैट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना। क्या था, कितने तरीके के मतलब जो रिसोर्सेज के जो टाइप्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? अगर रिसोर्सेज को हम लोग क्लासिफाई करें तो स्टडी करने के लिए कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं? चलिए, अच्छा, आई एम डिवाइडिंग इट बट यू विल बी टेलिंग कि उसका नाम क्या है। ठीक है, व्हाट आर द नेम्स? फाइन, इट वाज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर पार्ट्स। ठीक है, सॉरी, चलिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? यस, वेरी गुड, दिस इज राजनंदिनी, पूनम तिवारी। Better write your names after your comment, okay? Yes, so the first one was natural, okay? जो पहला था वो हमारा नेचुरल रिसोर्स था। ठीक है, जो दूसरा था वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था, या आप यहाँ पर कह सकते हो मैन मेड।
ठीक है, पहला हमारा हो गया नेचुरल, सेकंड इज मैन मेड, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स, and the third one is HRD, that is human resource development. ठीक है, अच्छा जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा था, तो व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी रिसोर्सेज होती हैं? द रिसोर्सेज व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अवर नेचर, जो हम लोगों को नेचर ने प्रोवाइड किया, उन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यस करेक्ट, वेरी गुड तुषार। ओके, तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज उन सारी चीजों को कंसिस्ट करता है जो कि हम लोगों को नेचर ने प्रोवाइड किया है, जैसे you can say land, you can say mountains, you can say sun, moon, okay, water, air, these all are the natural resources. ठीक है, जब हम लोग ह्यूमन या फिर मैन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो क्या क्या आएगा? यस वेरी गुड। अच्छा ओके श्रेया, ओके श्रेया, ओके श्रेया वेरी गुड आंसर। ओके, जब हम लोग मैन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आएगा? आंसर करिए जल्दी जल्दी। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो क्या क्या आएगा? इसमें क्या क्या आ सकता है? इसका क्या आंसर होगा? ह्यूमन मैन मेड में क्या आंसर होगा? फैन, कूलर, यस यू कैन फैन, कूलर और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। देन वी हैड कंस्ट्रक्टेड रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, इन सारी चीजों का जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, यस करेक्ट, वो सारी चीजें आ जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तब क्या कहते हैं? Why we are being means why we humans have been categorized into different portion of resources. रिसोर्सेज के दूसरे पोर्शन में या सेपरेट पोर्शन में ह्यूमन को क्यों रिसोर्स के तरीके से स्टडी किया जाता है या क्यों कहा जाता है दैट दे आर द डिफरेंट रिसोर्सेज? Why? Because humans used to study. Okay, what they used to do? They used to study. They used to invent. They used to utilize their experiences or you can say technologies का इस्तेमाल करके वो innovate करते हैं resources को। एक जो हमारे पास, जैसे हमारे पास एयर है, ठीक है, वी आर हैविंग एयर इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, एंड वी व्हाट वी ह्यूमंस हैव डन, वी हैव कंस्ट्रक्टेड विंड मिल्स। क्या किया हम लोगों ने? विंड मिल्स को कंस्ट्रक्ट किया। विंड से क्या होता है? वी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? उससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास वाटरफॉल्स थे बहुत सारे पहले से थे, फिर हम लोगों ने क्या किया? रिवर्स थी बहुत सारी। देन वी हैव कंस्ट्रक्टेड डैम्स। ह्यूमन ने क्या किया? उस डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया सो दैट दे कैन आल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर का फ्लो जो है वो कंट्रोल कर सके। देन टू दे आल्सो कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द आंसर? यस करेक्ट। ओके, दिस इज पूनम। बेटा मेंशन योर नेम एज यू आर राइटिंग योर कमेंट, जस्ट मेंशन योर नेम आफ्टर कमेंटिंग। आप जो भी आंसर करते हो, आप आंसर करने के बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद अपना नाम भी मेंशन कर दिया करें। फाइन। Yes, I am a bit confused whether you are Shreya or you are Mansi. Okay, but the answer is correct. Okay. अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, अब जब हम लोग HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दैट इज एन अदर स्ट्रीम। वो एक अदर दूसरी स्ट्रीम है जिसमें हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कौन सा ह्यूमन मींस जो भी ह्यूमन क्वालिटी है हमारे अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज है, किस किस लेवल पर वर्क कर सकती है, कौन कौन सी ह्यूमंस को किस किस लेवल का वर्क दिया जा सकता है, उसको स्टडी किया जाता है। इनका नेचर क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, इनके वर्किंग आवर्स क्या हो सकते हैं, इनको किस तरीके से बेनिफिट किया जा सकता है, किस तरह से मोल्ड और मोटिवेट किया जा सकता है किसी भी काम को करने के लिए, इन सारी चीजों की स्टडी जो हम लोग करते हैं दैट इज इन HRD डिपार्टमेंट। ऑलराइट, चलें अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को आज ये चैप्टर वाइंड अप करना है। ओके, एक और हेडिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन
ठीक है, जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है, कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोगों ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया है और किस किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, स्टेजेस क्या है उसकी डेवलपमेंट की। तो अगर हम लोग इसके बेसिस पे बात करते हैं तो किन किन चीजों के बारे में बात की थी हम लोगों ने, व्हाट वर द मेन टॉपिक्स, कौन कौन से मेन टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए हम बता देते हैं आपको, जब हम लोगों ने ये सेटिंग को पढ़ा था तो वी हैव कैटेगराइज्ड रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, ठीक है। बताइए कौन कौन से थे वो दोनों पार्ट्स, चलिए जल्दी से बताइए, आंसर करिए। दोनों जो पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे, किसी को याद है? Is there anyone who is remembering everything or who is having everything? जिसने नोट किया होगा उसे सब पता होगा। Yes, actual and potential, correct. The one is actual and the other is potential. वही एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। चलिए बताइए कि पोटेंशियल जो रिसोर्सेज थी हमारी, जो एक्चुअल रिसोर्सेज थी, जो एक्चुअल रिसोर्सेज थी ये कौन से रिसोर्सेज होती है, एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होती है वो हमारी ये कौन से रिसोर्सेज होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, इन दोनों रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या होता है, व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड दिस इन एज एन एक्चुअल रिसोर्स एंड दिस एज एन पोटेंशियल रिसोर्स। इसको पोटेंशियल रिसोर्सेज की तरीके से क्यों कैटेगराइज किया गया और इसको एक्चुअल रिसोर्स क्यों कहा गया, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। किसी को याद है? चलिए जल्दी से आंसर करें, एग्जांपल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, जस्ट यू डिफाइन मी, आप मुझे डिफाइन करके बता दें कि एक्चुअल रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन, उसको क्यों कैटेगराइज किया डिफरेंट पार्ट्स में। चलिए अच्छा मैं बता देती हूँ। एक्चुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज अबाउट व्हिच वी no it's not that, actually देखिए the word actual itself is telling that I am actually present, okay, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, when the word actual resource is coming, जब the word actual resource आ रहा है तो actual word जो है वो खुद ही कह रहा है कि हम actually में present हैं, मतलब हम रियलिटी में प्रेजेंट हैं, आपको हमारे बारे में पता करने की जरूरत नहीं, कहीं खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, आई एम स्टैंडिंग देयर, हम दिखाई दे रहे हैं आपको, साफ साफ आप हमें देख रहे हैं, आई एम एक्चुअली देयर, हम एक्चुअल में मतलब रियलिटी में हम हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पता है कितने हैं, कहां कहां हैं, कैसे हैं, किस किस फॉर्म्स में, इस सारी चीजों के बारे में आपको पहले से पता है। द रिसोर्सेज अबाउट व्हिच वी नो वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मींस द रिसोर्सेज अबाउट व्हिच वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन they are being categorized into actual resources, उसको actual resources में categorize किया गया है, ठीक है। फैन, कैंडल, कूलर्स, नो, इसमें हमने एक बहुत अच्छा बहुत बेहतर आंसर दिया था, एग्जांपल दिया था रूअर का, ठीक है, एक वर्ड था रूअर का जहां पर हम लोगों ने आपको एग्जांपल दिया था, यस करेक्ट। और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होती हैं उनके बारे में हमें पता नहीं है कि कहां कहां पर हैं, ठीक है। अब मींस अबाउट द पोटेंशियल वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोटेंशियल रिसोर्सेज, द पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज अबाउट व्हिच वी आर नॉट कंफर्म अबाउट द क्वांटिटी। हम लोगों को ये पता है, मैंने कहा था ना कि लद्दाख में हमारे पास क्या चीज, यूरेनियम बहुत ज्यादा है, ये हमें पता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक है। हम उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में स्टिल वी आर प्रोसेसिंग, अभी भी वर्क जो है इन प्रोग्रेस है, ऑलराइट। उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, जिसके बारे में हमें पता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इन सारी रिसोर्सेज जो है वो इस जगह पर मौजूद है, हमें पता है, लेकिन कितनी है और हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं इसके बारे में अभी हमें नहीं पता, वो हम लोग फ्यूचर में जानेंगे, ठीक है। उसे हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, और जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता है कि हाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है, किस किस फॉर्म्स में, और हम उसे यूज भी कर पा रहे हैं, तो दे आर सेड एज और दे आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज। आई होप अब कोई डाउट नहीं है दोनों में, ठीक है।
अच्छा, जब यहाँ पर हम लोगों ने इसका एग्जांपल, मतलब जब हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को एग्जांपल दिया गया था रूहर का, जो जर्मनी में कोल की अवेलेबिलिटी जो सबसे ज्यादा है, दैट इज इन रूहर, ठीक है। और दूसरा हम लोग एग्जांपल कह सकते हैं कि इंडिया में अगर हम लोग अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, किस चीज की, अगर इंडिया में हम लोग अवेलेबिलिटी की बात करते हैं आयरन ओर की, तो वो कुदमुर्ग में बहुत ज्यादा है। इन सब चीजों के बारे में मैंने रिटन नोट्स दिए थे, ठीक है। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो वी आर सेइंग वी कैन टॉक अबाउट यूरेनियम प्रेजेंट इन लद्दाख रीजन, ठीक है। लद्दाख रीजन में यूरेनियम कितना प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो विंड मिल्स है, इसको ये ध्यान रखिएगा, पहले अभी मतलब कुछ टाइम से पहले, कुछ ड्यूरेशन से पहले विंड मिल्स को हम लोग कैटेगराइज करते थे पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल रिसोर्सेज में। व्हाई? बिकॉज वी वर नॉट कंफर्म कि हमारे पास कितनी विंड मिल्स हैं और वो कहां पर है। बट नाउअडेज वी आर हैविंग ऑल द रिकॉर्ड्स कि विंड मिल्स कहां पर है और उनसे क्या क्या कैसे कैसे जनरेट हो सकता है, या मींस हाउ वी आर यूटिलाइजिंग उसको, कितना हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हमारे पास रिकॉर्ड्स है। सो दिस इज द रीजन नाउ वी आर कैटेगराइजिंग विंड मिल इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। इस वजह से आज के टाइम पे हम लोग विंड मिल्स को एक्चुअल रिसोर्सेज में कैटेगराइज करते हैं। फाइन, आई होप कि अब ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसको अभी ये चीज से क्लियर नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो वो पुराने वीडियोस को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन ओरिजिन, रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। जब हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज जो हैं वो ओरिजिन के फॉर्म्स में कैसे कैसे बेस्ड होती है, तो अभी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है। हम लोगों ने कहा था कि इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर हैविंग इट एज अ हेडिंग, ओके। एक दूसरी हेडिंग है आपके में, बायोटिक रिसोर्सेज एंड ठीक है। जब हम लोग ओरिजिन के फॉर्म में बात करते हैं, कैसे जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास, हाँ करेक्ट, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज पूनम तिवारी, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको आज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों को फ्यूचर में चल के यूज करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग अभी हम लोग वी आर इन जस्ट इन द प्रोसेस कि हम लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि अब समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ आपका सेकंड जो हेडिंग है दैट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। अगर हम लोग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन से रिलेटेड बात करते हैं, तो पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। व्हेन वी आर डिवाइडिंग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे डिवाइड करते हैं तो उसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, जब हम लोग डेवलपमेंट को कैटेगराइज करते हैं, डेवलपमेंट से जब हम लोग बात करते हैं कि हाउ यू विल बी कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट से कैसे आप डिवाइड करेंगे, तो चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। When we will be dividing it into on the basis of origin, जब origin से डिवाइड करेंगे, कैसे स्टार्ट होती है या ओरिजिनेशन जो है वो कैसे होता है, तब हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग में, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग क्रिएचर्स या लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, और बायोटिक में नॉन लिविंग, ठीक है। और नॉन लिविंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वो सारी रिसोर्सेज आ जाती है विच आर नॉट इन द लिविंग फॉर्म। रामशंकर करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स होती हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसमें हमारे माउंटेन्स आते हैं, सॉइल्स आते हैं, ठीक है, सारे फॉर्म्स ऑफ सॉइल्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं, और आप कह सकते हैं और क्या क्या आ सकता है, सन आ सकता है, मिनरल्स आ सकते हैं, ठीक है, और क्या आ सकता है, वाटर आ सकता है, एयर आ सकता है, ऑल दोज एनर्जीज, वो सारी रिसोर्सेज जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कभी मरती नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं नॉन
रिन्यूएबल रिसोर्सेज की और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, ठीक है। जब हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जब हम लोग बात करते हैं तो अगेन उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को उसकी बात नहीं करी, ये मुझे लगता है समझ में आ गया। अभी इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं, समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। बायोटिक लिविंग या बायोटिक नॉन लिविंग, याद रखना बस। इसको हम लोग ओरिजिन फॉर्म में डिवाइड करते हैं, जब डेवलपमेंट में डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्स एंड एचआरडी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, चलिए अब आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लोग बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है, तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में बात करते हैं तो उसको भी हम लोग फिर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, 2 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। ऑलराइट, कितने पार्ट्स में बांटा, 2 पार्ट्स में बांट दिया। पहला लोकलाइज्ड, ठीक है। द फर्स्ट वन इज लोकलाइज्ड फॉर्म या यू कैन से लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से आ जाते हैं, क्या क्या आता है, यहाँ पर आता है कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर एंड टिन, ठीक है। ये क्या है, ये लोकल रिसोर्सेज है, ठीक है। ये यू कैन से आप कह सकते हैं ये स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या जाते हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस पे मिलते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो एक प्रॉपर किसी लोकल एरिया में मिलते हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फिर दूसरा क्या हो जाता है, यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ओके। ओके, द अदर इज यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको। The first one is localized resources and the other is ubiquitous resources. Localized resources की जब हम लोग बात करते हैं तो जो वर्ड है लोकल, लोकलाइज्ड मतलब किसी एक जगह पर लोकेटेड हो, किसी एक जगह पर बात कर रहे हो, ठीक है। जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हम लोगों ने एक छोटा सा बना दिया, कहा कि कॉपर और टिन है मुझे इस जगह पर मिलेगा, ठीक है, दिस इज द प्लेस, यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये 2-3 जगह पर बना दिया और कहा कि ये लोकलाइज्ड प्लेसेस हैं जहां पर यूरेनियम या यू कैन से कॉपर या टिन या आयरन ऑक्साइड या कोई भी ऐसा मिनरल या कंपोनेंट जो वहां पर मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, ये कौन सी रिसोर्सेज है, ये हमारी कौन सी रिसोर्सेज है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये कौन सी रिसोर्सेज है, ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। इस पे हम लोग एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूबिक्विटस रिसोर्सेज, जब हम लोग यूबिक्विटस रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे एग्जांपल होंगे एयर, वाटर, ठीक है, एयर, वाटर, लैंड, या लैंड नहीं कह सकते क्योंकि लैंड हमारे कुछ रीजन्स में मौजूद नहीं है, लेकिन यस एयर वाटर जो है वो हम लोगों को हर जगह मिल जाता है। अगर हम लोग अर्थ के किसी भी पार्ट में जाएंगे तो वो किसी न किसी फॉर्म में जरूर मिलेगा, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में जरूर से जरूर मिलेगा। तो दे आर सेड एज यूबिक्विटस रिसोर्सेज, जो हम लोगों को ऑलमोस्ट हमारी लैंड या हमारी कैन से अर्थ के किसी भी एरिया में मिल जाए, जो किसी भी एरिया में मिल जाए उसको हम कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। जो जगह जगह स्पेसिफाइड जगह पर मिले उसको हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आ गया सबको। प्लीज आंसर करके मुझे बताएं ताकि हम आगे बढ़ें, टाइम नहीं है ज्यादा, आज चैप्टर खत्म कर देते हैं, ज्यादा बचा नहीं है। जस्ट वी आर लेफ्ट बिहाइंड द 2 यू कैन से 2 हेडिंग्स, हम लोग सिर्फ 2 हेडिंग से बाकी है, मतलब चैप्टर्स में बाकी है भी पॉइंट ऑफ करने के लिए। चलिए बताइए, इज इट डन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये हो गया सबको। ओके, थैंक यू।
चले आगे हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन। अब लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस की। नाउ अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हम लोगों ने क्लासिफाई कितने में किया है नेचुरल रिसोर्सेज को, तो क्या दे सकते हैं, कितने पार्ट्स में क्या क्लासिफाई किया है नेचुरल रिसोर्सेज को, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है? नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है, ध्यान रखना। ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम लोग किस किस फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं? क्या होगा, आंसर मत देखो, चलो आंसर तो जल्दी से, क्या होगा? चलो, the first one is renewable resources and the other is non renewable। ठीक है, पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स, यस करेक्ट, तुषार, yes it is correct, okay, Ayush Maurya is correct, the one is renewable resource and the other is non renewable resources। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। renewable resources वो resources होती है जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, मतलब बाद में दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वाटर एनर्जी को हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं, सन एनर्जी को हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, सन हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और कौन कौन से हो सकती हैं, विंड होगा, वेव्स होंगे। ठीक है, these all are etc, these all are renewable resources, इसको हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक, और जब हम लोग दोबारा से बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो उसमें क्या जाता है, उसमें आ जाता है कोल सबसे पहले। ठीक है, कोल आता है सबसे पहले, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। और ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। ठीक है, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, और मेटल्स हो गए। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बार बार हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आयरन ओर डिपॉजिट्स हो गए, ये सारी चीजें कुछ ऐसी है, पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज, यस दीज ऑल आर द थिंग्स, वो सारी नेचुरल गैस, मतलब यहाँ पर हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे, मतलब ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, यस करेक्ट। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया, दैट इज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेरेन, क्लाइमेट एंड, अच्छा, जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते थे, इसको टू पार्ट्स में और डिवाइड किया गया। ठीक है, ये छोटा सा कैटेगराइजेशन है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटीज में है, तो इसलिए इसको हमें पढ़ना है। द वन इज स्टॉक ऑफ रिसोर्स, ओके। ठीक है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज अगेन लोकलाइज्ड रिसोर्सेज को हम लोग कह सकते हैं, जो कि मतलब जिनका अमाउंट हमें पता है कि किस किस जगह पर किस किस अमाउंट में ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, depends on climate, climatic conditions, okay। Okay, so yes, these are the resources जिनकी अवेलेबिलिटी के बारे में हमें पता है, कहाँ पर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, and the other is distribution of resources depend upon climatic conditions। ठीक है, या फिर क्लाइमेट्स पे या एल्टीट्यूड्स पे, जो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बेसिकली बात करते हैं हम लोग, जब उस फॉर्म में कहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट। सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अगर हम लोग किसी डेजर्टी एरिया के बारे में बात करें, तो वहां पर क्या होगा, हम लोगों के पास लैंड तो अवेलेबल है। ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज दैट, लैंड नहीं पता, लैंड नहीं है वहां पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग द रिसोर्स, और यू कैन से सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर की सोर्सेज नहीं है, तो वहां पर हम लोग इन सारी चीजों का यू कैन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उस जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं, तो हम लोग उसे यूज कैसे करेंगे? ठीक है, दिस
these are the things to understand. ठीक है, अच्छा ये हमारा सेकंड लास्ट हेडिंग था चैप्टर का। एंड नाउ इसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग, आई होप कि समझ में आ गया था। वाज इट क्लियर? ये समझ आ गया ना सबको? आंसर देके जल्दी बताओ बच्चों। ओके, थैंक यू तुषार। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, सेव करके रखने को हम लोग कहते हैं कंजर्व करो, इसको कंजर्व करना है, ठीक है। जब हम लोग किसी चीज को कंजर्व करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं कि वी हैव टू मींस यू हैव टू सेव इट फॉर फ्यूचर यूजेस, ठीक है। तो अभी जब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो बेसिकली इसमें चार पांच पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। ओके ओके, तो हम लोग इसमें चार पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे 4 पॉइंट्स का। ओके, तो जब हम लोग पहली बात करते हैं, फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, ठीक है। क्या कहते हैं? Okay, now what we have to do, we have to use our resources very carefully, ठीक है। carefully का मतलब सपोज हम लोग सुबह सुबह उठे, ठीक है, पानी आ रहा है बढ़िया आराम से, सुबह गए वॉश बेसिन के पास ब्रश करने के लिए, टैप ऑन कर दिया, एंड टिल द टाइम वी आर ब्रशिंग अवर टीथ्स, जब तक हम लोग अपने ब्रश को अपने टीथ्स को ब्रश करें, द टैप इज ऑन, द रनिंग वाटर इज getting into vein. Okay, now what is happening, you are wasting your 2% of water which is available for drinking purpose. समझ आया? मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सपोज करें सुबह हम लोग नींद से जगे, वॉश बेसिन के पास गए, टैप ऑन किया, ब्रश करने के लिए टीथ में, जब तक हम लोग ब्रश यू कैन से वी आर ब्रशिंग अवर टीथ, जब तक हम लोग ब्रश करें अपने टीथ को, टैप ऑन है, रनिंग वाटर जो है दैट इज गोइंग इनटू वेन। वेन मींस इट्स गोइंग इनटू, इट्स गोइंग यूजलेसली, उसका जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है और वो फालतू में वेस्ट हो रहा है। तो जब जो वाटर वेस्ट हो रहा है दैट इज ओनली 2% ऑफ वाटर, ठीक है, जो वेस्टेज कर रहे हैं हम लोग वाटर की, तो 2% ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल फॉर अस फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जो पानी हम लोगों को पीने के लिए मौजूद है पृथ्वी पर, दैट इज ऑफ ओनली 2%। 2% पानी है जिसको हम लोग पी सकते हैं, डायरेक्टली उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उस कंज्यूमेबल वाटर को यू आर वेस्टिंग, ठीक है। आप उस 2% पानी को जो हम लोगों के यूटिलाइजेशन के लिए है, उसको आप बिन मतलब बर्बाद कर रहे हैं। तो व्हाट वी डू नॉट हैव टू डू इज वी हैव टू यूज अवर रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबिलिटी है हमारे पास रिसोर्सेज की, उसको क्या करना है, उसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको यूज मतलब उसको वेस्ट नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू वेस्ट इट। ओके, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। Now what is that is sustainable, the second question is sustainable development. Sustainable development का मतलब क्या हुआ? Sustainable development का मतलब हुआ कि सपोज करिए यस, सपोज करिए क्या हुआ कि हमारे पास, हमें जाना है कहीं तो 1-2 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, बहुत अच्छा सा मौसम है, ठीक, आपसे कहा गया या आपके पापा ने, मम्मी ने, किसी ने भी कह दिया कि जाकर मार्केट से आपको ये सामान लाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, यू आर हैविंग अ बाइक, आपके पास एक बाइक है, ठीक है, यू आर हैविंग यस यू आर हैविंग अ मोटर बाइक, यू आर हैविंग अ कार, यू आर हैविंग योर बाइसाइकिल, ठीक है, एंड यू आर हैविंग योर फुट्स आल्सो, ठीक है। क्या चीजें हमारे पास? 4 चीजें, वी आर हैविंग 4 वेज, जा करके मार्केट से सामान लाने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, ठीक है। क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज यू आर हैविंग अ मोटर बाइक, आपके पास क्या है? आपके पास एक अपनी मोटर बाइक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, यू आर हैविंग अ कार, आपके पास क्या है? कार है, ठीक है, जिसको आप ड्राइव करके आराम से जा सकते हैं एसी के अंदर, गर्मी भी नहीं लगेगी, धूप भी नहीं लगेगी, ठीक है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज यू आर हैविंग योर बाइसाइकिल, आपके पास आपकी साइकिल जिसको आप राइड करके जा सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यू कैन से द गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज योर ओन लेग्स, आपके पास क्या है? आपके पास खुद के आपके
अपने दोनों पैर हैं, ठीक है। नाउ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। सपोज यू आर गोइंग, अगर आप मोटर बाइक से जा रहे हैं तो अगेन यू विल बी यूजिंग योर पेट्रोल, आप अपना पेट्रोल यूज करेंगे। The second is if you are using your car, अगर आप कार का इस्तेमाल करते हैं तो अगेन यू आर हैविंग एन ऑप्शन, आप डीजल या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों चीजों मतलब दोनों रिसोर्सेज आपके पास है, आपके पास है, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन है कि आप बाइसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, आपकी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। Then the last and the important point is you are having your own legs, आपके पास आपके दोनों पैर हैं, अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं आप किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको पता है कि पेट्रोलियम है, डीजल है या कोई भी फॉसिल फ्यूल है, वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स में है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक लिमिट रिसोर्स है, उतने में ही है, और उसके बाद जब वो दोबारा से जनरेट होगा इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, दोबारा से जनरेट होने के लिए उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स की जरूरत है, ठीक है। तो इट इज अप टू यू कि आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे तो आप कार चला लें, वेस्ट कर लें अपना पेट्रोलियम, मतलब इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि इतने दूर जाने के लिए आपको कार या मोटर बाइक की जरूरत है, तो आप उसका या तो इस्तेमाल करें, या तो आप अपने बच्चों के लिए या आप अपने यू कैन से ग्रैंडसन्स के लिए या ग्रैंड डॉटर्स के लिए आप उसे कंजर्व करके रखें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस you have developed a lot, आपने डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो आप उसे कंजर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे वेस्ट कर सकते हैं। इट इज डिपेंडिंग मींस द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट इज सस्टेनेबल मींस इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप किस चीज को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यस, अच्छा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, सोच कर बताइए जल्दी से। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, और ये कैसे ऑल नहीं कह सकते हैं, चलिए लिखते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या कर सकते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की को यूज करने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑयल, मतलब किसी भी हम लोग ऑयल का इस्तेमाल, मतलब सपोज करें हम लोग के पास दो ऑप्शन है कि चाहे तो बिजली हम लोग हाइडल एनर्जी से या किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, या फिर किसी भी फॉसिल फ्यूल या किसी लोकल फ्यूल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लें, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास है, किससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अगर हम लोगों को ज्यादा टाइम के लिए चीजें यू कैन से कंजर्व करके रखना है, तो उस टाइम के लिए हम लोगों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज का फॉर्म करना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी पर फोकस करते हैं कि हम लोग जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग सोलर एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी के साथ फूड कुकिंग कर सकते हैं, सोलर एनर्जी के साथ आजकल मींस टुडे हम लोगों ने क्या किया, ऐसे बैटरीज का डेवलपमेंट किया है कि हम लोग बाइसाइकिल, मोटर बाइक्स और यू कैन से दैट दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी हम लोगों का पूरा सोलर एनर्जी के थ्रू रन किया जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी कैन यूटिलाइज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जो दोबारा से यूज की जा सकती है, उन रिसोर्सेज के बेसिस पे काम करें। लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, दैट इज damage the natural environment is minimized, ठीक है। we need to minimize damage to environment, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मिनिमाइज करना है, या मिनिमाइज यस वी नीड टू मिनिमाइज डैमेज टू एनवायरनमेंट। हम लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कम से कम नुकसान पहुंचाना है हमारे एनवायरनमेंट को। देखो नुकसान पहुंचाना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी बिल्कुल भी, लेकिन ये हम लोगों को पता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है तो वी हैव टू यूज फूड, हम लोगों को खाने की जरूरत है, ठीक है, खाने की जरूरत है। तो डेफिनेटली वे विल मींस जो भी हमारे पास लैंड्स होंगी उनका हम लोग डिफोरेस्टेशन करेंगे, वहां पर एग्रीकल्चरल या यू कैन से यूजेबल लैंड का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, यूजेबल फॉर्म बनाएंगे लैंड्स का, ठीक है। नाउ क्या हो सकता है, अभी हम लोगों को ये क्या है, सपोज करें हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम लोग बहुत बड़ी सी जमीन पे अपना एक फैमिली को रहने के लिए घर बनाए, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस
द थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन योर थिंकिंग, आप कैसा सोचते हैं इस चीज पर आपका कंप्लीट डेवलपमेंट और कंजर्वेशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लॉट लेंगे, प्लॉट पे घर बनाएंगे, मतलब घर बना के रहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हम अपार्टमेंट में घर ले लेंगे। ठीक है, जो एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, दूसरे फ्लोर के ऊपर तीसरा फ्लोर, ऐसे हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, सपोज हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट करनी है रोड का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है हमारे पास रोड का। सपोज हमारे पास इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम लोग एक रोड है उससे काम चल रहा है, उतना ज्यादा ट्रैफिकिंग भी नहीं होती है उस रोड पे, देन व्हाई वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अनदर रोड, दूसरी कंस्ट्रक्शन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, जबरदस्ती का जो नुकसान होता है उससे, अगर आगे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास चाहे जितने भी रिजॉर्ट्स होते हैं, हम लोगों को नए नए चीजों को मींस यू कैन से इनोवेशन करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, जितने भी लॉन्स हैं, जितने भी मॉल्स हैं, दे आर सफिशिएंट टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है, तो वी नीड नॉट टू कंस्ट्रक्ट सम मोर, और ज्यादा कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट यस, वी ह्यूमन बीइंग्स आउट ऑफ अवर बेनिफिट्स और ज्यादा कमाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, एक है, एक बढ़ रहा है, हम लोगों को और करना है, हमें भी करना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से थोड़ा ऊपर होना है। वी हैव टू थिंक फॉर अवर नेचर, और ज्यादा एफोरेस्टेशन करना है इंस्टेड ऑफ डिफोरेस्टेशन। ओके, आपका पूरा ज्योग्राफी का फर्स्ट पोर्शन दैट इज ऑफ रिसोर्स इज कंप्लीट, द चैप्टर इज एंड। ओके, आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया, कुछ बचा नहीं है। अभी किसी के पास कोई डाउट है? अच्छा, ये चैप्टर समझ में आ गया एवरीवन? आई होप कि सबको समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चिल्ड्रन रिप्लाई तो कर दो। Is there anyone who is having any problem?